Good morning, student. Myself Abhishek, and I'm a research scholar in the Center for Advanced Research in Earthquake Studies of Kshetra University. And I'm going to teach you the digital signal processing. In this class or in upcoming classes, we will study only those topics which will be very important for your exam point of view only. Okay, so we don't go for the bulky study. So let us start with some introduction part of the different types of signals and systems. Okay, so first, how I define the digital signal processing. So actually, there's a wide variety of application for a digital signal processing in different domains. So it is very hard to define the exact definitions of a digital signal processing. So we will define one by one uh, of of the term that is a DSP. Okay. So first one is digital. So what is a digital actually? A digital is electronic technology in which the data is transmitted, stored, or processed in terms of a positive and non-positive integer. So positive integer is nothing but a 1, and non-positive integer is nothing but 0. Okay, so means in form of this 1, sorry, so in term of 1 0 1 0 like this, and this is called the binary language, the language that is understandable to the your digital device. Okay, so the device you are using right now for listening my presentation, either you are using PC, your laptop, or your mobile phone, every device is a digital device. Okay, and this device only understand this language, or you can say the binary language. Okay, so this is called a digital. Next one is signal. So signal is a functions of, how can I define signal? A signal is a functions of one or more independent variable that carries some information to represent a physical phenomena. Okay, like music, speech, motion, picture. ठीक है, अब मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो ये भी क्या आप मेरी ऑडियो सुन पा रहे हैं, तो दिस इज आल्सो सिग्नल दैट कैरी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग definition. Okay, so this is a example of some acoustic signal. Okay, and this kind of signal may be come to this equation, sorry, line, that is functions of one or more independent variable. ठीक है, तो जो मैं आपका ऑडियो आप सुन पा रहे हैं मेरी, that will depend on many parameters. Okay, ठीक है, नेट कनेक्शन पे डिपेंड करेगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कोई साथ में अगर कोई म्यूजिक सिस्टम चला रहा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर क्या करेंगे, मेरे जो सिग्नल है, जो मैं अकॉस्टिक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, डिम्यूनाइज करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा सिग्नल इन पे डिपेंडेंट है। बट जो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, दैट इज इंटरनेट, और जो ये मैं एग्जांपल दिया आपको म्यूजिक सिस्टम का, बट दिस टू terms here variable does not depend on each other, और may be depend or may not be depend। ठीक है, तो यही इसका लाइन का मतलब है कि सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि सिग्नल आपका कई पैरामीटर्स पर डिपेंड कर सकता है, बट दिस पैरामीटर मे नॉट बी डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, तो नेक्स्ट टर्म इज ए प्रोसेसिंग है। व्हाट इज प्रोसेसिंग? तो व्हाई वी डू प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग मींस to enhance our result, to get some reliable information from our signal। Okay, or you can say to enhance this signal to noise ratio। ठीक है, we do the processing with the sum of some kind of the digital system, you can say some mathematical operations। Okay, now look at the basic diagram of some digital device। So in first, what you have some analog signal which is only understandable to you। Okay, the device or digital device cannot understand this signal, so first you have to transform this analog signal to the signal format that is a understandable to the some digital system। Okay, so we have to transform this analog signal to ADC, that is analog to digital converter। Okay, so what this block do, this transform this analog signal to the digital signal। Now we have a digital signal as a output of ADC। Okay, so this digital signal then transmitted to the digital system, so this signal is transmitted to digital system, and this system will perform some operation, some processing on signal to remove some noise part। Okay, to improve the signal to noise ratio। Okay, now in after processing we have a output of digital system as a uh, digital output, sorry, as a digital sorry, the output of a digital signal is also the digital signal। Okay, now the enhanced output in a form of digital। Okay, so this
format is also not supported to us, or we can say you cannot understand this kind of signal, so we have to transform this signal back to the analog, so we can easily understand it, or so we can easily retrieve some useful information from the signal. So we have to pass our digital signal to the DAC, that is a digital to analog converter. Okay, now the output of DAC is a analog signal. Okay, analog signal, but the signal that is processed by the digital system. Okay, तो इस सिग्नल को हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, और वी कैन एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सिग्नल. ओके, दिस इज व्हाट योर पीसी डू. ठीक है, अब आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से आप कम प्रेस करते हैं, क्या करते हैं प्रेस आप एफ जी सी, या फिर जब अल्फाबेटिक टाइप करते हैं तो क्या हो रहा है, वो कंप्यूटर एफ नहीं समझ रहा अगर आप एफ प्रेस कर रहे हैं, जी प्रेस कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंड इन टर्म ऑफ 101 बाइनरी कोड. ठीक है, ठीक है, तो आपको जब पीसी आप यूज कर रहे हैं वो भी आपका एक डिजिटल डिवाइस ही है. ठीक, तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपको आपका पीसी भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसको. ठीक है, नाउ वी विल गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल. Okay, you can see the classifications of signal. We have different types of signal like continuous time signal, discrete time signal, deterministic, non-deterministic signal, periodic and non-periodic signal, even and odd signal, energy and power signal. ठीक है, among these 5 signals the most important is the periodic signal. ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है जनरली वो इसी से आता है, आ जाता है, मतलब जरूरी नहीं कि आए, पर इसी से, मतलब लास्ट ईयर की जो जैसे 2016 में भी इसी से क्वेश्चन आया है कि व्हाट विल द पीरियड ऑफ सम सिग्नल. ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो इवन एंड ऑड सिग्नल है. इसी बेसिकली न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, बट जो वेरियस कॉम्बिनेशन है इवन ऑड सिग्नल के, लाइक what will if we have a two even signal but we add two even signal, what will be output of signal, मीन सिग्नल विल के सिग्नल वो इवन होगा या इवन ऑड होगा. ठीक है, उस तरह से आपका क्वेश्चन इस मतलब सिग्नल्स में से आ सकता है. ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पीरियोडिक है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी इनको हम थोड़ा फटाफट से इसको निपटाएंगे. ओके, so first one is a continuous signal or a continuous time signal. So how can you define a continuous signal? As the name suggests, continuous, that is signal that may be continuous with respect to time, means you get the amplitude of signal or a value of signal at every instant of time. Okay, like मैं draw करूँ, how can I represent diagrammatically the continuous signal? Okay, this is on x-axis we have a time of a some wave, आपकी signal है with respect to time है, और ये आपका amplitude है. Okay, on y-axis. So as you see, you will get the amplitude of a wave at every instant of time, means हमारे पास हर एक टाइम पे आपकी वैल्यू है. ठीक है, लाइक मैं इसको मैं डिवाइड करूँ, 0 फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, तो आप देख रहे हैं आपके 1 और 2 के इंटरवल के बीच में आपके पास टाइम है. ठीक है, मैं अगर इसको ब्रेक कर दूं यहाँ पर 0.5, तो आपके पास 1 और 0.5 के बीच का भी आपके पास वेव का एम्पलीट्यूड है. आप चाहे नैनो माइक्रो सेकंड में चली जाइए या फिर नैनो सेकंड में भी चले जाइए. ठीक है, आपको हर एक टाइम पे आपका वेव का जो है एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा. तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सिग्नल है या जो वेव है वो आपको हर एक टाइम पे आपको मिल रही है, मींस द सिग्नल इज ए कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा किसी भी यू कैन से कॉन्टिन्यूस सिग्नल को, दैट इज x of t is equal to, let us take the example of sine wave. Okay, that is a sine omega t plus with theta. Okay, so this equation represents a sine wave that is a continuous with respect to time. Okay, because जब आप वैल्यू t की वैल्यू पुट करते हैं कि 10 वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास साइन वेव की वैल्यू होती रहेगी. और ठीक है, जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ वेव बनेगा. ठीक है, फिर a जो है दैट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव है. ओमेगा क्या है आपका, बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. Okay, where f is a frequency, or I can also write it as 2 pi by me t. T is nothing but a period of a wave. Okay, theta is equal the phase shift. Okay, so this is example of a mathematical example of a continuous time signal, and this is a example of the diagrammatically हम किस तरह से represent करेंगे किसी continuous signal को. ठीक है, next one is a discrete signal.
ओके। सो डिस्क्रीट सिग्नल क्या है? डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब है कि आपके पास जो सिग्नल की वैल्यू है वो आप कॉन्टिन्यूस ना होगे, बट एक स्पेसिफिक टाइम या पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास सिग्नल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट ए सिग्नल? डिस्क्रीट। ओके। सो बिफोर गोइंग टू रिप्रेजेंटेशन, जो आपका डिस्क्रीट सिग्नल है वो आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल से ही बनता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम सैम्पलिंग प्रोसेस। ओके, जैसे कि आपके पास ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, फॉर एग्जांपल आपका इसी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये आपका कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो जब मैं इस सिग्नल को ये क्या आपकी सैम्पलिंग ट्रेन से पास करूंगा, सैम्पलिंग पल्स ट्रेन से पास करूंगा, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट a signal at only specific time where we have a value of the where we have a sample it. Okay, like this. ठीक है, तो मैंने इस कोऑर्डिनेट सिग्नल को इस सेस्मिक ट्रेन पल्स से पास किया और वी गेट दिस टाइप्स ऑफ सिग्नल, एंड दिस काइंड ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल, बिकॉज आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पे है। ठीक है, इन बिटवीन आपके पास सिग्नल की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ए डिस्क्रीट इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस इक्वेशन को लेंगे हम, साइन वेव का एग्जांपल लेंगे, दैट इज x ऑफ n इज इक्वल टू a साइन ओमेगा एन प्लस के थीटा। ठीक है, वही ए आपका यहाँ क्या पे एम्पलीट्यूड है, थीटा आपका फेज शिफ्ट है, ओमेगा क्या है आपका, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो आपका एन है वो आपका नंबर है कि जहां जहां पे आपकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं एक्स ऑफ एन रिप्रेजेंट करूँ, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से मेरे पास कोई सिग्नल है, तो ये एक्स जीरो पे है, ये एक्स वन पे है, ये एक्स टू पे है। ठीक, इस तरह से है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आपके पास जो सिग्नल की वैल्यू है वो आपके पास स्पेसिफिक टाइम पे है। ठीक है, वन पे है, सॉरी जीरो पे है, वन पे, बट इन बिटवीन वन एंड जीरो आपके पास वैल्यू नहीं है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट is a classifications of a deterministic and non-deterministic signal. Okay, so deterministic signal का मतलब क्या है? Determined, नाम से पता लग रहा है कि determined मतलब ऐसा सिग्नल जिसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग सम मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, कि ऐसा सिग्नल देयर इन विच देयर हैज ए नो अनसर्टेनिटी एट ऑल। ठीक है, तो हाउ कैन आई डिफाइन द डिटरमिनिस्टिक सिग्नल? एज बिहेवियर ऑफ दिस सिग्नल इज द प्रेडिक्टेबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स अगर आपके पास सिग्नल डिटरमिनिस्टिक है, ठीक है, एक मतलब कि आपके पास एक यू कैन से फ्लो में है आपका सिग्नल, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस सिग्नल की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं एट सम टाइम टी। ठीक है, देयर इज ए नो अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू एट एनी टाइम। ठीक है, हर एक टाइम पे उसकी वैल्यू होगी, ये नहीं है कि किसी टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ है या फिर किसी टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, मीन्स अगर हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं तो मतलब वो डिटरमाइंड है ना। मीन्स आप किसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूँ, किसी भी इक्वेशन को या फिर किसी सिग्नल को, तो आप उस सिग्नल को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उस सिग्नल को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सम फिल्ट्रेशन वगैरह सब कर सकते हैं, पर अगर आपके पास सिग्नल रैंडम हो तो आप उसको मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस बाय मैथमेटिकली लाइक एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन थ्री टी। ठीक है, तो जैसे आपके पास साइन वेव है, तो हमें इसको जैसे आपके प्रीवियस एग्जांपल था, जैसे मैंने आपको जो कॉन्टिन्यूस और डिटरमिनिस्टिक सॉरी कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम का एग्जांपल दिया था मैथमेटिकली, वो क्या थे? वो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल थे, बिकॉज उन सिग्नल को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते थे, लाइक एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन थ्री टी। ठीक है, ये भी डिटरमिनिस्टिक ही है। ठीक है, जैसे कि आपका एक आप ये देखिए, ये आपके पास ये वेव फॉर्म है। ठीक है, अब ये किस टाइप का सिग्नल है? आपका डिस्क्रीट सिग्नल है, बिकॉज आपके पास जो वैल्यू जो सिग्नल की वैल्यू है वो स्पेसिफिक टाइम पे है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि जो उसका वेव है साइनसोइडल है। ठीक है, आप साइनसोइडल वेव को आप मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये डिटरमिनिस्टिक सिग्नल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ए नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल और रैंडम सिग्नल, नाम से पता लग रहा है रैंडम। ठीक है, जिसके जो एम्पलीट्यूड है या वैल्यू है with respect to time या फिर with respect to any other variable वो random है। we cannot predict its value।
after some time. So how can I define the random signal? Is the behavior of this signal is random, therefore non-predictable with respect to time. There is a uncertainty with respect to its value at any time. ठीक है, किसी टाइम पे इसकी वैल्यू कुछ होगी, मतलब एक फ्लो में चल रहा है आपका सिग्नल, एक टाइम पे बाद, ठीक है, आप सोचेंगे कि नेक्स्ट जो आपका स्टेप अगर उसको आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे तो आप उसी फ्लो के बेस पे करेंगे, बट रैंडम सिग्नल में ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस सिग्नल कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि थर्मल नॉइज जनरेटेड इज ए नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि आपको किस तरह से आपका सिग्नल डिटरमिनिस्टिक है या फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे वेव, ये आपका किस टाइप का वेव है बताइए मुझे, क्योंकि आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है, जैसे जैसे एग्जांपल मैं जस्ट सेज फॉर दिस इज पीरियोडिक सिग्नल, तो पीरियोडिक सिग्नल है तो आप आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है, इसका वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन भी कर सकते हैं, आप इसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या है, किस टाइप का सिग्नल हुआ ये डिटरमिनिस्टिक सिग्नल हुआ। ऐसे ही डिस्क्रीट सिग्नल भी है, वो भी एग्जांपल जो दिखा रखे हैं मैंने, ये वाला ये भी किसका एग्जांपल है, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल का। तो जितना भी साइन वेव है, कोसाइन वेव है, ट्रायंगुलेशन वेव है, ठीक है, ये जो जितनी भी वेव्स हैं, ये जो जितने भी सिग्नल मैंने बोले, साइन कोसाइन ट्रायंगुलेशन वेव है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल फंक्शन है, तो ये किस टाइप का सिग्नल है, ये आपका डिटरमिनिस्टिक सिग्नल है। ठीक है, जबकि रैंडम सिग्नल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है, जैसे कि ये है, सॉरी, क्या आप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली? नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ए रैंडम सिग्नल। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, when you do the side effect study in a seismology, you generally record the ambient vibration. Okay, so ambient vibration का जो आप प्लॉट देखेंगे वो स्टेप्स होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम जब ये एम्बिएंट वाइब्रेशन आप रिकॉर्ड करेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड होगा वेव का, ये फिर टाइम होगा, वी टाइम से रिस्पेक्टिव आपका जो सेस्मिक वेव का जो, या फिर सेस्मिक वेव कह रहा हूँ, जो नॉइस रिकॉर्ड होती है, तो इस टाइप का आपका एम्बिएंट वाइब्रेशंस आप रिकॉर्ड करते हैं जब आप साइड इफेक्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये नॉइस किस टाइप की नॉइस है, सॉरी ये जो सिग्नल है वो कैसा है, ये रैंडम सिग्नल है, यू कैन नॉट डिफाइन इट मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, एफएफटी लेते हैं। एफएफटी लेने के बाद हम इस सिग्नल को साइन कोसाइन टर्म में ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ सम रैंडम एंड नॉन रैंडम सिग्नल। ठीक है, तो मैं इसको रैंडम और नॉन रैंडम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो कुछ भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली पूछ कर रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम और नॉन रैंडम एक ही बात है। ठीक है, so next most important class of signal is a periodic and non-periodic signal. Okay, so periodic, first we will define the periodic signal. So periodic signal क्या है, the signal which repeat itself after some time of interval. Okay, तो ये वही लिखा है यहाँ पर, if a signal repeat itself after fixed time of interval is called a periodic signal. So what is the conditions of periodicity is this, that is x of t इज इक्वल टू एक्स टी प्लस के टी नोट। ठीक है, इक्वेशन क्या कर रही है कि कोई सिग्नल है एक्स है, कोई सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, वो पीरियोडिक कब होगा, व्हेन इट रिपीट आफ्टर सम टाइम टी नोड। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका टी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका फंडामेंटल पीरियड, सॉरी फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड। ओके, तो दिस इज कंडीशंस ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, सो एक कॉन्टिन्यूस टाइम, the conditions for periodicity to for sorry the conditions for a signal continuous signal periodicity is this. Okay, that is signal, because जो कंडीशन ये डिफाइन कर रहा है वाली, ये किसकी कंडीशन है, फॉर कॉन्टिन्यूस सिग्नल की है। बट अगर मेरे पास डिस्क्रीट सिग्नल हो तब कंडीशन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, दैट इज रिप्रेजेंट बाय दिस, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस के कैपिटल एन। ओके, यहाँ पर एन क्या है, वही कि आपका
वो जो आपका डिस्क्रीट मतलब जो n क्या है वो डिफाइन कर रहा है कुछ सीक्वेंस की, मतलब आपके पास किसी एक n पॉइंट पे आपका सिग्नल की वैल्यू है, ठीक है। और जो आपका n है इज अगेन इज ए फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है। नाउ द कंडीशन फॉर नॉन पीरियडिसिटी इज दैट व्हेन दिस दैट इज दिस, ठीक है। व्हेन जब ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो सिग्नल टू बी, सिग्नल हम क्या बोलेंगे सिग्नल को, दैट इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल हम उसको बोलेंगे, ठीक है। और ये फिर ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए होगा और डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इस तरह से, सॉरी एन कैपिटल एन, ठीक है। दिस इज कंडीशंस फॉर द नॉन पीरियोडिसिटी। तो सिग्नल दैट इज रिपीट itself after some time of interval is called the periodic, and a signal which does not repeat itself after some time of interval does not repeat, we can say the it is a non periodic signal. So what will the example of the periodic and non periodic signal? Sine wave, ठीक है, cosine wave, ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल है, periodic सिग्नल के, ठीक है। जबकि जो अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, तो जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, सॉरी, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है मतलब नॉन पीरियोडिक, ठीक है। और जनरली यू विल कंसीडर, जनरली इट इज अज्यूम दैट द पीरियड ऑफ ए नॉन पीरियोडिक सिग्नल या एक्सपोनेंशियल सिग्नल टू बी इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल सिग्नल को ड्रॉ करूंगा तो किस तरह से ड्रॉ करूंगा, इस तरह से होगा ना, ये इंफिनिटी बजाएगा, एम्पलीट्यूड होगा वेव का, ठीक है, ये सोर्स टाइम है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये कि जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है उनका जो पीरियड है वो क्या है, वो इंफिनिटी है, ठीक है। सो हम थोड़ा अभी एग्जांपल से समझेंगे कि हाउ विल डिफाइन सम सिग्नल टू बी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि हाउ विल फाइंड द पीरियड ऑफ सम सिग्नल, तो आप किस तरह से इक्वेशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल पोर्शन पे, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैंने बताया था आपको, मैं डिस्क्रीट सिग्नल की बात करूं, x ऑफ n इज इक्वल टू x n प्लस k कैपिटल N, ठीक है। दिस इज द कंडीशंस फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। जब का जो आपका n है ये क्या आपका पीरियड है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है, जो द कंडीशंस फॉर ए डिस्क्रीट, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि मतलब बता दिया कि आप किसी सिग्नल को पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक किस तरह से बोलेंगे। बट अगर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इट हैज सम कंडीशंस, ठीक है, कि जो इफ तो कंडीशन क्या है, ए सिग्नल ए सॉरी ए डिस्क्रीट सिग्नल is said to be periodic if its its frequency f node is a in a rational form. Rational form means in a form of like this, a divided by में b, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है कि दोनों जो आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं ये दोनों के दोनों आपके होने चाहिए, आपके इंटीजर फॉर्म करने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा मतलब न्यूमेरिकल, तब आपको इजीली मतलब समझ में आएंगे कि किस तरह से ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ कोई, जैसे कि आपके पास न्यूमेरिकल है, we have some discrete signal like cos 0.01 pi n, सॉरी, आपके पास सिग्नल है that is that is cos 0.01 पाई n, ठीक है। ये आपके पास कोई सिग्नल है और इससे पूछा गया है कि if it you have a discrete time signal determine whether this signal is a periodic and non periodic, ठीक है। अगर आपके पास ये periodic सिग्नल है then find its a fundamental period,
ठीक है, मैं दो एग्जांपल आपको कराऊंगा। ठीक है, पहले एग्जांपल ये है कि वी हैव ए सम डिस्क्रीट सिग्नल दैट इज cos 0.01 पाई n। हमें बताना है कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है और नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, अगर पीरियोडिक है देन व्हाट विल बी इट्स फंडामेंटल पीरियड दैट इज n। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए, दैट इज गिवन सीक्वेंस क्या है आपके पास, cos 0.01 सॉरी 0.01 पूरा लिख देता हूँ उसको, cos that is how can we have a sequence that is x of n is equal to cos 0.01 pi n। okay, this is a given sequence that is equation 1। ठीक है, तो अब आपको पता है वी हैव आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कोसाइन वेव की दैट इज, मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, दैट इज एक्स ऑफ एन। और मैं डिस्क्रीट सिग्नल है तो मैंने इसलिए एन यूज किया, cos ओमेगा एन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, तो now I am going to compare these two equation that is equation number 1 and equation 2। so how तो what we how जब मैं उसको कंपैरिजन करूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको, ओके नाउ मैं इसको लिख सकता हूँ पाई। ओके, सो हमारे पास मैंने दोनों की मेरे पास ये इक्वेशन थी दैट इज मेरे पास इक्वेशन थी एक्स एन दैट इज कोस 0.01 पाई एन। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसको क्या किया, कंपेयर किया विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज डिस्क्रीट सिग्नल of cosine wave that is xn is equal to cos omega n। now comparing these two equation what will you get, that is omega is equal to 2 pi 0.01 pi। okay, ये इक्वेशन कैंसिल होगी नंबर 3। ठीक है, बट इन एक्चुअली ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ, it is angular frequency, so we will put this value here, 2 pi f is equal to 0.01 pi। okay, so pi से pi cancel out, got it, so we have f here 0.01 0.01 divided by में 2। okay, so f की वैल्यू क्या आई बताएं मुझे, क्या आई 1 बाय सोल्व करूंगा 200 सॉरी 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 तो मेरे पास f की वैल्यू क्या आई, क्या आई बताओ, यहां से सोल्व करेंगे इसको, f इज इक्वल टू कितना आएगा 1 बाय 200। तो मेरे पास इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या आई, f नथिंग बट क्या है फ्रीक्वेंसी है 1 बाय 200। तो मैं इसको कैसे क्या यूनिट लिखूंगा उसकी, साइकिल पर सैंपल। ओके, तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 200। ठीक है, तो मैंने जब बताया था कि फॉर ए डिस्क्रीट सिग्नल टू बी पीरियोडिक द फ्रीक्वेंसी इन ए फॉर्म ऑफ रैशनल, मतलब इन फॉर्म ऑफ रेशियो, और जो आपकी रेशियो होगी जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होगा दैट शुड बी इन ए इंटीजर फॉर्म। ठीक है, तो आपका f क्या है यहाँ पर 1 बाय 200। ठीक है, तो कंडीशन क्या है पीरियोडिसिटी की, f इज इक्वल टू के बाय में स्मॉल n। ठीक है, आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर ये आपकी 4 है, जो आपकी आएगी इक्वेशन नंबर 5, जो आप उसको कंपेयर करोगे टू बट वी हैव k बाय n इज इक्वल टू 1 बाय 200। ठीक है, 200, तो आपका देखना है कि जो आपका k है ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर, वो भी आपका किसमें है, इंटीजर फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर वो भी इंटीजर फॉर्म में है। ठीक है, सो यहाँ से कंडीशन होल्ड हो गई, सो वी कैन से दिस सिग्नल इज ए पीरियोडिक इन नेचर। ठीक है, सो अब पीरियोडिक हो गया, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी इट्स
you can say what will be its fundamental period. ठीक है, जब ओके तो any equation that is x of n is equal to a cos a cos uh, n plus a capital N, that is called the fundamental period. So n क्या है यहाँ पर आपका 200, तो this will be the fundamental period. ओके, इस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा मुझे लगता है कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। जिस आपको इक्वेशन क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज cos 0.01 जैसे आपका इक्वेशन है, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, उसको सिर्फ सॉल्व ही करना है आपको। ठीक है, इसमें कोई हार्ड कोई रूल नहीं है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इसमें नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे इसी बेस में, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल पे। तो लेट अस से वी हैव ए डिस्क्रीट सिग्नल दैट इज xn इज इक्वल टू cos 3 pi n। ओके, ये आपके पास सिग्नल है, तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट दिस सिग्नल इज ए पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे, जैसे हमें प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो लेट अस से दिस इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ कंपेयर नाउ वी हैव ए स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर cos के लिए क्या है, cos ओमेगा n, इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। okay, so what we have a cos omega n is equal to cos 3 pi n। okay, so what we have omega is equal to here 3 pi। ठीक है, नाउ आपके पास क्या है, ओमेगा कैसे हम लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई एफ, ऐसे ही बताते हैं ना, ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू पाई एफ। सो नाउ पुट द ओमेगा वैल्यू हियर, 2 pi f is equal to 3 pi, so cancel out pi to pi, sorry। Now put the omega here, that is 2 pi f is equal to 3 pi, cancel out pi to pi। तो आपका जो आपकी इस जो आपके पास डिस्क्रीट सिग्नल है cos 3 pi n के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बताइए, 3 बाय में 2 सैंपल पर सॉरी साइकिल पर सैंपल, 3/2 साइकिल पर सैंपल। ओके, सो अब आप देख रहे हैं आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई है हेयर अगेन आपका जो टू रेशियो में आई है, दैट इज न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट एंड बोथ आर इंटीजर। ओके, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस सिग्नल दैट इज x ऑफ n इज इक्वल टू cos 3 pi n इज पीरियोडिक सिग्नल है, डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल बिकॉज डिस्क्रीट नेचर का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फंडामेंटल पीरियड, f इज इक्वल टू के एन। ओके, हम इसे निकालेंगे, फिर n क्या आपका फंडामेंटल पीरियड है, तो कंपेयर करो उसको 3/2, तो आपकी n कितना गया 2, तो क्या हुआ, दिस विल बी दी फंडामेंटल पीरियड फॉर दी दिस डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे कि कोई सिग्नल आपका पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल का भी करेंगे कि किसी सिग्नल का अगर पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है तो उस को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, सो नाउ I will give example of a numerical example for a non-periodic signal. Okay, so let us say we have a signal that is represented with x of n is equal to cos pi by में 8 into में cos pi n by में 8। Okay, so we have this signal and the examiner will ask if what is the find out this signal is periodic and non-periodic. If it is periodic then find out its natural period। So okay, so now आपके पास पहले जो इक्वेशन सोल्व की इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट था, अब यहाँ पर दो है। ठीक है, तो हम इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर है। नाउ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज हियर cos ओमेगा 1n into में cos ओमेगा 2n।
then now this equation 1 that's equation 2 now comparing equation 1 and 2 what we have तो हम पहले इसको सोल्व कर लेंगे ठीक है तो what we have omega 1 sorry cos omega 1 n is equal to cos pi by 8 got it तो omega 1 की वैल्यू क्या है pi by में 8 okay now again omega की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 pi f1 now put this value here 2 pi f1 is equal to pi by में 8 ठीक है पाई से हमने पाई कैंसिल आउट किया तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ गई f1 की वैल्यू 1 बाय में इसमें पाई है ना सॉरी सॉरी ये तो मैंने पीरियोडिक का एग्जांपल बता दिया आपको पीरियोडिक एग्जांपल है आपका जो यहाँ पर आपका ये है ना ये टर्म ये यहाँ पर नहीं है मैंने इक्वेशन दूसरी उठा ली तो पीरियोडिक का जो न्यूमेरिकल है वो है जो इक्वेशन है वो इस तरह से है cos n बाय में 8 इंटू में cos पाई n बाय में 8 गॉट इट तो उसी तरह से हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज cos ओमेगा 1n इंटू में cos ओमेगा 2n okay now comparing equation 1 and 2 what we have omega 1 so the cos omega 1 n is equal to n by 8 so we have omega 1 is equal to 1 by 8 got it so what we have हमें पता है कि omega 1 की वैल्यू क्या है 2 pi f got it तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 2 pi f is equal to 1 by 8 तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ गई कितना आ गया दिस ठीक है 1 by 16 pi ये आपकी f1 की वैल्यू आ गई got it इसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरा ये दूसरी टर्म है इसको सोल्व करेंगे that is क्या है cos omega 2n is equal to pi n by में 8 ओके नाउ ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय में 8 ठीक है अगेन ओमेगा 2 की वैल्यू जनरल वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू 2 पाई f पुट दिस वैल्यू हियर नाउ 2 पाई f 2 सॉरी यहाँ पे 2 है इज इक्वल टू पाई बाय में 8 पाई से पाई कैंसिल आउट f की वैल्यू कितनी आ गई 2 की 1 बाय में 16 ठीक है तो आप देखते हैं कि जो f1 है उसका जो न्यूमरेटर है वो तो इंटीजर है बट जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पाई ठीक है बट f2 में क्या है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपके इंटीजर है ठीक है तो जो सेकंड टर्म है यहाँ पर ये तो आपकी पीरियोडिक है बट दिस टर्म क्या है नॉन पीरियोडिक है ठीक है तो f1 तो आपका क्या है नॉन पीरियोडिक है जबकि f2 क्या है आपकी पीरियोडिक है ठीक है so when we multiply this f1 into f2 but we get this signal to be non periodic ठीक है तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आपको पता लगी पीरियोडिक की कि if one signal is a periodic ठीक है and another signal is non periodic when we do multiplication the output may not be periodic it is maybe non periodic okay तो हम ये कह सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि सिग्नल क्या आपका पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है ठीक है तो अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके गेट के एग्जाम में आया था इन 2016 में कि the examiner will does not ask this signal to be periodic and non periodic it will ask what will be the periods of a signal ठीक है उसने सिग्नल का पीरियड के बारे में पूछा है तो हमें पीरियड कैसे निकालते हैं किसी सिग्नल का वो हम स्टडी करेंगे ठीक है एक न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व कराऊंगा जो 2016 में आया है ठीक है okay so this is the question that is coming 2016 and the examiner will ask the time period of a signal that is s of t is equal to st pi by में 3t in प्लस में प्लस में है एक सेकंड में लिख लेता हूँ चेक कर लेता हूँ प्लस में है प्लस cos pi by में 2t is डैश 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 सेकंड ठीक है मतलब वो पूछ रहा है कि कोई सिग्नल है आपके पास एस ऑफ टी साइन पाई बाय में 3t प्लस कोस पाई बाय में 2t उसका टाइम पीरियड क्या होगा ठीक है इसने बाद में यूनिट भी दी है सेकंड में निकालना आपको ठीक है तो इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे किस तरह से देखिए आपके पास सिग्नल है एस ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय में 3t प्लस कोस पाई बाय में 2t ठीक है इक्वेशन नंबर 1
अब मैंने जितने पीछे एग्जांपल करवाए थे, दिस आर फॉर द डिस्क्रीट सिग्नल, नाउ दिस एग्जांपल फॉर द कंटीन्यूअस सिग्नल, ठीक है। प्रोसीजर सेम रहेगा, आइदर दिस कंटीन्यूअस और नॉन कंटीन्यूअस सिग्नल, ठीक है। तो हम फर्स्ट वही पहली टर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट इज हमारे पास सिग्नल दैट इज एक्स ऑफ टी फॉर एग्जांपल ले लिया हमने, साइन ऑफ पाई बाय में 3t, ठीक है। ना कंपेयर इट, सॉरी यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर आपका एस है, सॉरी, फॉर एग्जांपल मैं S1 ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ compare this with the standard equation, that is S1t is equal to sine omega t. Got it? Comparing equation number this and equation this, what we have, sine omega t is equal to pi by में 3t, so sine है यहाँ पर भी, ठीक है। Now what we have omega is equal to pi by में 3. Now put the equations of omega, that is 2 pi f is equal to pi by में 3, cancel out pi to pi, but we have f is equal to, what we have f is equal to 1 by में 6, ठीक है। तो मैं इसका टाइम पीरियड निकाल लूंगा, t कितना होगा, t is a inverse of the frequency, so t we have 6, got it, for t1, ठीक है। तो t1 हमारे पास क्या होगा 6। इसी तरह से हम दूसरी टर्म है जो हमारे पास, वो क्या है, cos pi by में 2t, इसका निकाल लेंगे। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज cos ओमेगा t, गॉट इट, s2t इज इक्वल टू s2t, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे, बट वी हैव cos ओमेगा t is equal to cos pi by में 2t, got it, so we have omega here pi by में 2, got it। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, that is 2 pi f is equal to pi by में 2, pi to pi cancel out, f की वैल्यू कितनी आएगी 1 by में 4, got it। तो यहाँ से हम टेम्परेट निकालेंगे, t is equal to what, पीरियड क्या आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है p, sorry t is inverse of frequency, but we have t, so we have t2 here is 4, got it। now we have t1 is equal to 6, t2 is equal to 4, now take the LCM of this, we have a time period, but we have time period, जब आप LCM से कितना आएगा 12, okay, 12 सेकंड, so the time period for this signal, continuous signal will be 12 सेकंड, got it। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल है, आपके पास क्या करना है, आपको आपके पास कोई सिग्नल है, चाहे वो आपके प्लस में है, चाहे आपको मल्टीप्लीकेशन में है, चाहे वो डिवाइड में है, आप क्या कीजिए, हर एक टर्म को उठाइए, कंपेयर कीजिए विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, फाइंड आउट द ओमेगा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी यू कैन फाइंड द फंडामेंटल पीरियड और ए टाइम, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट मेल इट टू मी, ठीक है। मैं आपको लास्ट में लेक्चर क्लास में मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, ओके। नाउ नाउ कम टू दिस स्लाइड, ये एक स्लाइड क्या कहती है कि सम ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल, जरूरी नहीं है कि आपके पास दो सिग्नल पीरियोडिक हैं, ठीक है, तो उनका जो सम है वो भी पीरियोडिक है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में समझाया था कि आपके पास दो सिग्नल थे, ठीक है। जब हमने उसको सिग्नल को सोल्व किया तो उसमें एक सिग्नल का निकला पीरियोडिक निकला और एक क्या था नॉन पीरियोडिक निकला, ठीक है। बट जो ओवरऑल जो उसका रिजल्ट था वो क्या था, वो नॉन पीरियोडिक था, बिकॉज उसमें एक सिग्नल पीरियोडिक था, ठीक है, सॉरी एक सिग्नल क्या था, नॉन पीरियोडिक था। सेम कंडीशन आपकी सम पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। सेम तरह से हम किसी दो इक्वेशन, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया है प्लस वाला विद कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का, उसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों सिग्नल पीरियोडिक हैं तो सिग्नल भी आपका पीरियोडिक हो। जैसे कि आपका एग्जांपल है टी, जैसे एग्जांपल आपका ये, जैसे एग्जांपल आपका ये cos t प्लस में sin पाई बाय में 2t, ठीक है। सेम प्रोसीजर से आपको सोल्व करेंगे, पहले इस टर्म को सोल्व करेंगे cos t को, नेक्स्ट टर्म दूसरी टर्म को सोल्व करेंगे sin पाई बाय में 2t को, और फिर दोबारा से f निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी f रैशनल है मींस आपकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके पास किस तरह से हैं, इंटीजर है, देन ओनली द फंक्शन विल बी पीरियोडिक, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है इस इक्वेशन को सोल्व करने का, ठीक है। कोई इसमें हार्ड एंड रूल, कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। So the next classifications of signal is the even signal and the odd signal. Okay, so how can we define a signal to be even? ठीक है, if a signal is said to be even if it's hold the condition that is x of t is equal to x of minus t, ठीक है। so these types of signal is also called the symmetric signal, ठीक है। तो एग्जामिनर में आस्क इवन, सॉरी एग्जामिन जो आपका एग्जामिनर होगा, दे में आस्क
they may use a terminology even or may use a symmetric or non-symmetric signal. ठीक है, so a even signal or symmetrical signal, if a signal is called to be even or symmetrical signal if it is hold the condition that is x of t is equal to x of minus of t. ठीक है, that is called the even signal. And when this condition does not hold, this is called the odd signal. Okay, so as I say, the even signal are the symmetrical nature. So the signal, the representation of signal, so the signal has the same representation in a both side, that is left hand, sorry, right hand side and left hand side as you see. Okay, तो आप देख रहे हैं कि at x is equal to 1 or x at x is equal to minus 1, the signal has the same amplitude, that is 1 and 1. Okay, at minus 2, at x is equal to minus, plus 2, and at x is equal to minus 2, the signal has the same amplitude, that is equal to minus 3, plus 3 and plus 3. So as I draw this signal, what I have like this. Okay, so as you see, the signal is symmetrical nature. ठीक है, जैसा सिग्नल आपका इस साइड दिख रहा है राइट हैंड साइड, वैसे सिग्नल आपका राइट हैंड साइड में दिख रहा है. ठीक है, so now we have example of a discrete odd signal. As you see, at x is equal to 1, the amplitude of a signal is a 1. Okay, but at x is equal to minus 1, we have an amplitude that is minus 1. ठीक है, तो देख रहे हैं कि there is no symmetry at all in the left hand side and right hand side. So as I draw this signal, how does it look like? Just look like this. Sorry. ओके, सो एज यू सी देयर इज ए नो सिमेट्री. ओके, यहाँ पर आपका देख रहे हैं एम्पलीट्यूड आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव है. ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन सिग्नल एंड द even signal and the odd signal. ठीक है, so as we see, as the any function can be represented by the combinations of even signal and the odd signal. ठीक है, so when the even signal part, when the even part of the signal is 0, the signal is a odd. Okay, if a function has a odd part is a 0, then we say it is a even. ठीक है, तो मैं इसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन मतलब लिखूंगा, किसी सिग्नल को हम किस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, as I say, any continuous signal can be represented by the combinations of even and odd. Means a signal, continuous signal, has a even part as well as a odd part. Okay, so let's say x of t let us say x of t is equal to x e t प्लस के x o t. गॉट इट. सो जो आपका ये x ऑफ ई टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन पार्ट, मतलब आपके पास कोई आपका फंक्शन सिग्नल है, फंक्शन x ऑफ टी, मैंने बोला था दैट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट. ओके, तो जो पहला पार्ट है x ऑफ ई टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिग्नल का इवन पार्ट, और x ओ टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑड पार्ट. ठीक है, तो मैं इसको भी मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, कैसे दिखाऊंगा? नाउ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट कैन बी एक्सप्रेस एज x of e t is equal to 1 by 2 x of t plus x of minus t. ठीक है, तो दिस इज कंडीशन फॉर द मतलब कंडीशन फॉर द इवन पार्ट. नाउ हाउ कैन आई ऐड द ऑड पार्ट? that is 1 by 2 x of t minus x of minus t. बिकॉज इवन पार्ट की कंडीशन क्या है? ये है, बोथ आर सेम. ठीक है, बट इवन में ऐसा नहीं है. सॉरी 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 सॉरी, जो आपका इवन इवन जो इवन की कंडीशन क्या है, ये है
एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, मतलब मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, जबकि ओड में ऐसा नहीं है, दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, इवन मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका ये किसी सिग्नल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, is a combinations of even part and odd part, and even part can be defined by this x of et is equal to 1 by 2 xt plus x of minus of t, whereas odd part then we define x naught t is equal to 1 by 2 x of t minus के x minus t, got it, ये आपका odd part हो गया, ये आपका even part हो गया। ठीक है, तो this is for the कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए है। ठीक है, सेम सिमिलरली वे में मैं उसको डिस्क्रीट सिग्नल के लिए रिप्रेजेंट करूंगा, वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, x ऑफ n इज इक्वल टू x e n प्लस x o n। ठीक है, दिस इज डिस्क्रीट सिग्नल का ये इवन पार्ट है, ये डिस्क्रीट का ऑड पार्ट है। ठीक है, तो हाउ कैन आई write the even term for the discrete signal, x of n is equal to 1 by 2 x of n plus x of minus n। ठीक है, similarly for the odd term 1 by 2 x n minus of x of minus n। ठीक है, ये आपका इवन टर्म होगी, ये आपकी odd टर्म होगी और दी डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, नाउ नाउ इसमें जो इवन एंड ऑड पार्ट में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं इसके में क्वेश्चन, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें से जनरली पीरियोडिसिटी से ही क्वेश्चन आया है इस लेक्चर में से, बट इवन एंड ऑड पार्ट की जो वेरियस कॉम्बिनेशन है उसमें से क्वेश्चन में आ सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताना चाहिए कि इफ यू हैव ए टू सिग्नल, even signal odd signal, when we do its combination what will be the output, आउटपुट में भी क्या आउटपुट आपकी इवन होगी या ऑड होगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा फ्लो चार्ट से समझाऊंगा, तो आप उसको नोट कर लेंगे बुक में। ठीक है, कि अगर आपके पास दो इवन सिग्नल हैं तो उसकी जो इनपुट जो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सिग्नल क्या रहेगा, सिग्नल क्या रहेगा, आउटपुट और ऑड सिग्नल रहेगा या फिर इवन सिग्नल रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए समझाया है। जैसे इवन पार्ट है, इवन पार्ट में मैंने बताया कि कंडीशन क्या है, जैसे जी ऑफ टी विल बी इक्वल टू जी ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये वेव फॉर्म है, आप देख रहे हैं कि जो वेव फॉर्म है, जो नेगेटिव हैंड साइड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, बोथ आर सेम। ठीक है, जो वेव फॉर्म है, अब वेव फॉर्म का जो पैटर्न देख रहे हैं वो दोनों साइड सेम है, तो ये किस टाइप का वेव फॉर्म हुआ, इवन वेव फॉर्म का, ये आपका इवन फंक्शन हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि आपके पास कोई वेव फॉर्म दे दिया इस टाइप का, चार आपके पास चार ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि विच वेव फॉर्म इज इवन। ठीक है, सिमिलरली आप ये इक्वेशन ये वाला देखिए जी टी सेकंड वाला, यहाँ पर भी वेव फॉर्म दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, सेम है। ठीक है, जबकि अब ऑड में ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, दैट इज क्या कंडीशन है, जी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव की तरफ है, जबकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव की साइड है। ठीक है, देयर इज नो सिमिट्री एट ऑल। ठीक है, यहाँ पर भी कोई सिमिट्री नहीं है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव साइड में है, यहाँ पर नेगेटिव साइड में है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ दी odd part, सॉरी odd function। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो इस पीपीटी में तो आप जस्ट मेरे को मेल करेंगे, मैं आपको लास्ट में आपकी मेल आईडी बताऊंगा, यू जस्ट मेल इट टू मी, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मीन्स आपका डाउट क्लियर करने में मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दीज आर दी वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा था कि वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ इवन एंड ऑड पार्ट के। ठीक है, लाइक आपके पास कोई फंक्शन है, बहुत इवन फंक्शन है, तो व्हाट विल बी द सम, सम विल बी इवन। ठीक है, इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे क्वेश्चन तो कभी आया नहीं बट मे बी आ सकता है। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि अगर आपके पास दो इवन सिग्नल है तो व्हाट विल बी सम, सम विल बी इवन। ठीक है, इफ वी हैव ए बोथ इवन सिग्नल देन द डिफरेंस विल बी इवन। Same if we give the product of two even signal then the product will be even। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी टेबल को नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, नोट कर लीजिए इस टेबल को।
हाँ, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है। नाउ जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, इसमें से मैं आपको एक या दो सॉल्व करके बता दूंगा कि किस तरह से मैंने बताया कि अगर आपके पास दो इवन सिग्नल हैं और उनके प्रोडक्ट इवन कैसे आई है। ठीक है। मैं सभी तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सो हम इसको एक को मैं कराता हूँ कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, इवन सिग्नल है दोनों, अगर हम उनके प्रोडक्ट लें तो इवन कैसे आएगी। ठीक है। तो ये मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझाया है, पर मैं आपको इक्वेशन से समझाऊंगा कि हाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है। आपके पास दो अगर दो इवन सिग्नल है, उसकी प्रोडक्ट आप कैसे इवन लेके आएंगे। ठीक है। डायग्राम पे हम बाद में आएंगे। ठीक है। तो लेट अस से सपोज वी हैव टू इवन फंक्शंस। ठीक है। हमारे पास दो इवन फंक्शन है। सपोज हमने किया, लेट अस से एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इवन है तो दिस विल, हम इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अगर ये इवन है, मैंने लिए दोनों इवन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली दूसरा फंक्शन ले लिया, लेट इज जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर ये भी इवन है तो दिस विल आल्सो होल्ड दिस कंडीशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो अब हमें क्या डिफाइन करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज आल्सो इवन। तो लेट अस से कोई फंक्शन ले लिया, जिस वाई ऑफ एक्स हमने ले लिया, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन। ठीक है। ठीक है। तो हमने ले लिया कि मैंने बता हमें क्या प्रोडक्ट लेनी है, तो लेट अस से कि वाई क्या है, प्रोडक्ट है किसी की दो इवन सिग्नल की। हमें बताना है कि जो वाई एक्स है ये इवन है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट अस चेंज एक्स टू माइनस एक्स इन इक्वेशन वन। ओके। तो हम इस इक्वेशन वन में क्या करेंगे, माइनस जहां पर एक्स है वहां पर माइनस एक्स रखेंगे हम। वाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू में जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। नाउ हमें पता है वाई ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो हम यहाँ रखेंगे एफ ऑफ एक्स। गॉट इट। ठीक है। इसी तरह से माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स। ठीक है। प्लस जी ऑफ एक्स, तो हमें जी ऑफ एक्स रख देंगे। ठीक है। दिस विल इक्वल टू वाई ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। नाउ हम नाउ पुट दिस इक्वेशन वन, हम देखना है कि ये कैसी वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू वाई वाई ऑफ प्लस एक्स। ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई ऑफ एक्स। तो कंडीशन होल्ड होगी। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज आल्सो इवन। ठीक है। समझ गए। मैं दोबारा से समझा देता हूँ आप एक बार कि हमने क्या किया, लेट अस सपोज टू इवन फंक्शन ले लिए हमने, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर वो इवन है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। सिमिलरली दूसरा फंक्शन ले लिया, दैट इज जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जी ऑफ प्लस एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये इवन है तो ये कंडीशन होल्ड करेंगे। तो ठीक है। नाउ लेट अस से y of x will represent the product of two even function that is f of x dot g of x। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो x है इसको चेंज किया माइनस ऑफ x से। ठीक है। माइनस ऑफ एक्स हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है। तो हमने यहाँ जगह सब जगह क्या रखा, माइनस ऑफ एक्स रखा, माइनस एक्स इस इक्वेशन में माइनस माइनस हमने पुट कर दिया। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस एक्स। हमने वो वैल्यू पुट कर ली। सिमिलरली हमें पता है कि जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो हमने वो वैल्यू पुट करी। ठीक है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, वाई ऑफ एक्स के, तो हमने वो वैल्यू यहाँ पुट करी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, वाई ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू वाई ऑफ प्लस एक्स। तो ये कंडीशन किसकी है, इवन फंक्शन की कंडीशन है। सो हमने बोल दिया कि दी व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन वी टेक, दिस इज आल्सो ए इवन फंक्शन, विल बी आल्सो ए इवन फंक्शन। ठीक है। तो इसको इन्होंने डायग्रामेटिकली यही समझाया है कि अभी देखो आपके पास इवन फंक्शन है जी ऑफ वन, G1t आपके पास इवन फंक्शन है बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड। सिमिलरली G2 भी आपका इवन फंक्शन है। तो व्हेन वी टेक दी प्रोडक्ट, ओके, तो जो हमारे पास जो आउटपुट आ गई इज आल्सो ए इवन फंक्शन। बट सिमिलरली वे में आप सिमिलर वे में आप ओड फंक्शन के लिए निकालेंगे। जब बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, और जब आप आउटपुट लेके आएंगे तो आपके पास क्या आएगी आउटपुट, बताओ क्या आएगी, सोचो।
क्या आएगी, जब आप देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर ओड ओड है तो ना ओड क्या आएगा, इवन आएगा। कैसे आएगा मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ अभी, ठीक। देखिए, देखिए आपके पास ये इवन एंड ओड है। हाँ देखिए अभी जो प्रोडक्ट ये वाला है फंक्शन, कि अगर आपके पास दो ओड फंक्शन है तो उसकी प्रोडक्ट ओड नहीं आएगी, उसकी प्रोडक्ट इवन आएगी। कैसे आएगी, इसमें सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल रूल है, ठीक है। जब आपके बोथ साइड, जैसे कि ये इक्वेशन थी, यहाँ पर आपके साइड दोनों साइड माइनस माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। तो सेम वही इक्वेशन बन जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो मैं इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कि लेट अस से हमारे पास हम दोनों ओड लेना है फंक्शन, तो लेट अस से आपके पास फंक्शन है माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये ओड है तो दिस विल कंडीशन होल्ड करेगा, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। सिमिलरली जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के जी ऑफ एक्स, बिकॉज बोथ आर ओड functions, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक अगेन y ऑफ x इज ए, लेट अस से ये दोनों के हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए हैं, आपका ओड ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो y ऑफ x इज इक्वल टू अगेन इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। change again change here x to minus x, we will put y of minus x is equal to y of minus x into में g of minus x, सिमिलर वे में जैसे हमने इवन पार्ट के लिए किया था, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस की एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस की जी ऑफ एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो वाई ऑफ एक्स कितना गया, कितना गया वाई ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू में जी ऑफ माइनस एक्स, ये क्या है आपका पास, इवन पार्टी तो क्या है, ठीक है। तो व्हेन आप सॉरी व्हेन वी हैव टू ओड फंक्शन, ठीक है, व्हेन वी टेक इट्स प्रोडक्ट वी विल गेट ए इवन फंक्शन, गॉट इट। इस तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। सिमिलर वे में आप सभी के सभी कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। ये अब डेरिवेटिव इंटीजर फंक्शंस का, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में, कि अगर पास का इवन फंक्शन है, ठीक है, और इवन फंक्शन है, अगर आपको डेरिवेटिव लेंगे तो ओड आएगा, इसी तरह से इंटीजर लेंगे तब भी ओड प्लस के कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि अगर डेरिवेटिव लेंगे आप दो इवन फंक्शन का तो क्या आएगा, और इंटीजर लेंगे तो क्या होगा, सॉरी इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, कर लेना नोट आप सबने, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट, सो एनर्जी सिग्नल, हाउ कैन डिफाइन एनर्जी सिग्नल, so a signal with a finite energy zero power is called the energy signal, ठीक है। so according to these conditions energy should be finite, that so it is be less than infinity, means it is should be finite. So the conditions for energy is E is less than infinity or greater than zero, got it. In between or net and power is a, and what will and power is also zero, so this is the conditions for the energy signal. ठीक है। नाउ the signal energy of a signal is defined as the energy area of a scale of magnitude of a signal. How can I write ex, अगर आपके पास continuous और complex signal है, then in that case ex is equal to integrations minus infinity to plus infinity x of t, आपका xt क्या है यहाँ पर, कोई continuous signal है, ठीक है। अगर आपका discrete signal होगा तो यहाँ पर आपका n आ जाएगा, ठीक है। नाउ ex is equal to minus infinity to plus infinity मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ टी स्क्वायर डॉट डी टी, ठीक है। नाउ द यूनिट ऑफ सिग्नल क्या कहता है, द यूनिट ऑफ सिग्नल एनर्जी डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ, व्हाट इज से क्या लिख, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, आई थिंक इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो मैं इसको जो एनर्जी पावर सिग्नल है मैं उसको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करके इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हम्म सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है,
इसका, बिकॉज एग्जाम में आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल हैं, ठीक है, वो पूछ सकता है कि आपके पास को उसको वो आपको कोई डिस्क्रीट स्टैंडर्ड सीक्वेंस दे देगा और पूछ लेगा व्हाट विल बी इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, what will be a jet transformation. Okay, so unless you don't know the conditions for some discrete signal, you cannot find a discrete you cannot find its Fourier transformation, you cannot find its jet transformation. So this is very important, you can say very important part of this lecture, that is the standard discrete time signals. ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, चार पांच ही हैं, आप उसको मतलब माइंड में रखें कि व्हाट विल बी कंडीशंस फॉर पर्टिकुलर सिग्नल। ठीक है, कि एग्जाम में अगर पूछ लिया, अगर फॉर एग्जांपल उसने एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट विल बी दी जेट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, अनलेस आपको यूनिट स्टेप फंक्शन की अगर कंडीशन आपको पता नहीं होगी, यू कैन नॉट फाइंड जेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो आपको ये मतलब इस पे थोड़ा ध्यान दें, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ, जो पिछले वाला भी मैंने किया है टाइप्स ऑफ सिग्नल क्लासिफिकेशन, उसमें सिर्फ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जितने भी मैं आपको कराऊंगा वो सभी के सभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक बात और, बिफोर गोइंग टू दिस फंक्शंस, मतलब डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू विल रिप्रेजेंटेड योर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अगर आपने जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें गड़बड़ कर दी अंडरस्टैंडिंग में, या आपने गलत रिप्रेजेंट कर दिया अपनी सीक्वेंस को, तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको उसको बताऊंगा आपको कि how you will represent your discrete time sequence, then we will go to the standard time discrete sequence, okay, sorry, signals। ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे आपकी किसी सीक्वेंस को। ठीक है, सो पहले हम मतलब बताऊंगा आपको कि आप टैबलो सॉरी डायग्रामेटिकली आप किसी सीक्वेंस को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास कोई सीक्वेंस है x ऑफ n, कोई डिस्क्रीट सीक्वेंस है x ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 -3 -4, okay, let us say 6। ठीक है, so the length of this sequence, what will be length of sequence। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सीक्वेंस इज, बताइए कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, बताइए 6 होगी या कितनी होगी, 6 नहीं होगी, इसकी लेंथ ऑफ सीक्वेंस होगी आपकी, सॉरी 6 तो है पर आपकी जो सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ टेबुलर फॉर्म में, सॉरी डायग्राम में, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू मेरी 1 है, एक्स ऑफ 1 पे मेरी वैल्यू 2 है, एक्स ऑफ 3 पे मेरी वैल्यू, सॉरी एक्स ऑफ 2 पे वैल्यू मेरी 3 है, एक्स ऑफ 3 पे मेरी वैल्यू -3 है, एक्स ऑफ 4 पे वैल्यू है -4, और एक्स ऑफ 5 पे वैल्यू है मेरी 6। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस है, अगर आपके पास एक्स एन कोई सीक्वेंस है, तो नंबर ऑफ पॉइंट एन विल बी वेरी फ्रॉम 0 टू एन। ठीक है, सॉरी 0 टू एन माइनस 1, सॉरी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, सपोज यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरे x इज इक्वल टू 0 पे कितना एम्पलीट्यूड है वेव का, ठीक है, 1 है, सपोज इट इज 1, x1 पे मेरा एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। ठीक है, x2 पे मेरी वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, x3 पे वैल्यू कितनी है मेरी, -3, तो मैं -3 में चला जाऊंगा। गॉट इट, x4 पे मेरी वैल्यू कितनी है, -4। ठीक है, S5 में मेरी वैल्यू कितनी है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट, कि अगर आपको फंक्शनली रिप्रेजेंट करना हो किसी सीक्वेंस को, तब कैसे करोगे। फंक्शनली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास सीक्वेंस है, सपोज x ऑफ n इज इक्वल टू 2 1 0 -1, फिर 4 n is equal to -2 1, n is equal to -3 0 3, n is equal to 2 और n is equal to -1।
ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जब आपका n -2 है तब उसका एम्पलीट्यूड आपका 2 है। when you have n is equal to 1 we have amplitude 2, ठीक है। when you have amplitude -3 0 और 1 we have a sorry at n is equal to -3 0 3 we have a amplitude that is 1, at n is equal to 2 we have amplitude of signal is sequence is 0, and at n is equal to -1 we have amplitude that is -1, ठीक है। तो इस तरह से हम सीक्वेंस को फंक्शनली और डायग्रामेटिकली समझेंगे, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे ये तो फिर भी चल जाता है, पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि सीक्वेंस को आप किसी सीक्वेंशियली फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वह तो मैंने आपको बताया था शुरू में, ठीक है। ये आपके सीक्वेंशियली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पर एक एरो लगा दिया यहाँ पर, तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे बताइए। सोचिए कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये एरो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर है अगर आप किसी भी सीक्वेंस का जेट ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एरो में गड़बड़ कर दी, अगर आपने एरो में गड़बड़ कर दी लगाने में, तो आपका पूरा का पूरा जेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जहां ये एरो है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ सीक्वेंस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पे एरो है वो आपका एम्पलीट्यूड है सीक्वेंस का एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसके राइट हैंड साइड में होगा वो आपका पॉजिटिव हैंड साइड के लिए होगा, जो राइट में होगा सॉरी जो लेफ्ट में होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए होगा। लेट अस से, तो अगर आपका एरो यहाँ पे 3 पे है तो मतलब आपका जो 3 जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। तो 4 कितने पे होगा, एक्स इज इक्वल टू 1, -5 एक्स इज इक्वल टू 2, तो 6 कितने पे होगा, एक्स इज इक्वल टू 3 पे, जबकि यहाँ पर कितना होगा, x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए, ठीक है। ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 जहाँ एरो है वो आपका x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x 0 पे कितनी बार एम्पलीट्यूड है इसका, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। x 1 पे कितना एम्पलीट्यूड है, 4 है, तो ये 4 हो गया, x इज इक्वल टू 1 और आपका 4 हो गया, ठीक है। x 2 पे अपना एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है, तो सपोज के 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। और 3 पे कितना एम्पलीट्यूड आपका 6 है, तो सपोज के ये आपका x इज इक्वल टू 3 पे आप सॉरी यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 पे आपका एम्पलीट्यूड कितना है, 6 है, ठीक है। सिमिलरली आपका x इज इक्वल टू -1 पे एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, ठीक है। तो -1 यहाँ पे है, x इज इक्वल टू -1 सपोज के 2, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 पे कितना एम्पलीट्यूड है, -2, तो इस तरह से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो का ध्यान आपने हमेशा रखना है, ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 1 -2 -3 -4, और मैं एरो यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक सीक्वेंस मेरी ये है 1 5 0 3, और मेरा एरो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि इसमें से मैंने एरो दिया ही नहीं इस सीक्वेंस में, तो यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 किस में होगा। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, जो पहला जो आपका नंबर होगा x इज इक्वल टू, वहां पर हम जो पहला जो डिजिट होगा सीक्वेंस का जो पॉइंट होगा, हम वहां पर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मतलब वहां पर हम एरो लगा देंगे बाय डिफॉल्ट, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एरो दिया है तो आपका x इज इक्वल टू 0 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव साइड के लिए होगा, या नेगेटिव साइड के लिए होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका हमने एरो यहाँ लगाया है 5 पे, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये आपका पॉजिटिव साइड होगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। लेट अस, मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, x ऑफ n 1 2 3 5 7, ठीक है। तो अब मैंने इसमें देखो एरो नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट में एरो कहाँ पुट करूंगा, 1 पे, ठीक है। तो इस तरह से हम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीरो पैडिंग, ठीक है। तो जीरो पैडिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो सीक्वेंस है उसको हम एडजस्ट कर सकें उसकी लेंथ को, ठीक है। तो जीरो पैडिंग जैसे मैं आपके पास सीक्वेंस दे दी 1 2 3 4, ठीक है। तो हम जीरो पैडिंग
क्या करते हैं, जीरो पैडिंग में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, या तो बिगनिंग में या तो शुरू में यहाँ पर, ठीक है, या फिर एंड में सीक्वेंस के, ताकि सीक्वेंस को हम वो कर सकें, बराबर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास की सीक्वेंस है, दूसरी है वाई ऑफ एन सीक्वेंस है, ठीक है, ओके सीक्वेंस है सपोज 1 और 2, ठीक है। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 4 नंबर है, यहाँ आपके 2 नंबर है, ठीक है। तो हम इसको दोनों को इक्वल करने के लिए वाई में क्या करेंगे, जीरो पैडिंग कर देंगे, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं 0 0 1 2, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 0 0, ठीक है। तो आप दोनों देख रहे हैं, दोनों की दोनों इक्वेशन आपकी मतलब नॉर्मलाइज होगी, मतलब दोनों बराबर होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम जीरो पैडिंग, ताकि हम अपने सीक्वेंस को एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक रिप्रेजेंटेशन था, कि ये थोड़ी बेसिक चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी, ठीक है, बिफोर गोइंग टू दी स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस में, ठीक है। सो so let us start the standard discrete time signals. So first one is a delta or unit step function. Okay, so this is the conditions for unit step function. So a discrete time unit impulse functions that is denoted by this, that is del n, okay, donated by Dallon, and it has a condition that is represented by this equation, okay. So how so ये condition क्या कह रही है कि आपका कोई अगर आपके पास यूनिट इम्पल्स फंक्शन है या फिर डेल्टा फंक्शन है, it has amplitude only at n is equal to 0 where it has amplitude that is 1, देखो देखो, तो ये कह रहा है ना कि आपका that is del n आपका 1 है for n is equal to 0 only, and for रेस्ट ऑफ वैल्यूज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हैंड साइड इसकी वैल्यू आपकी जीरो रहेगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये देखो कैसे रिप्रेजेंट किया, ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एक्स है, सॉरी एन है, n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2 3 4, n is equal to -1, n is equal to -2 -3, इस तरह से, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहती है, सिर्फ n is equal to 0 पे ही इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो n is equal to 0 कहा यहाँ पे है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी, और रेस्ट ऑफ इसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायरेक्ट डेल्टा और यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। नाउ द डिस्क्रीट सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय del n इज इक्वल टू 1, ओके, और बाकी रेस्ट ऑफ के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, बिकॉज एट n इज इक्वल टू 0 पे ही इसकी वैल्यू 1 है as I show here, और rest of n is not equal to 0 because यहाँ पर n is equal to 0 है, यहाँ पर n is equal to 1 है, n is equal to 2 है, n is equal to 3 and so on up to infinity, ठीक है। सिमिलरली n is equal to -1 n is equal to -2 है, up to so on minus infinity, इसकी वैल्यू 0 रहेगी, but only at n is equal to 1 it has amplitude 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपका कैसे फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये तो डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए है, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, ठीक है, उस केस के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट इम्पल्स फंक्शन को, सिमिलरली यहाँ पर डेल ऑफ टी आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है, 1 4 t इज इक्वल टू 0 एंड 0 4 t नॉट इक्वल टू 0, बस इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगी। यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर आपका डेल ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर n की जगह t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 20, मतलब जब आपका t इज इक्वल टू 0 है तो आपका डेल ऑफ t आपका 1 है, और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डेल्टा और यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से फंक्शन है, एंड दिस फंक्शन विल बी हेल्पफुल इन डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर्स और चेकिंग दी वो यू कैन से हम यूजफुल फॉर चेकिंग दी फ्यूचर वैल्यू या फिर प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट वन इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन, एज नेम सजेस्ट स्टेप फंक्शन, ओके। तो un, तो वो क्या कहता है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन की कंडीशन क्या है, un, जो आप देख रहे हैं ना del n, यहाँ पर है un, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, तो प्लीज डोंट चेंज दिस सिंबल। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको याद रहे कि अगर सिंबल चेंज कर रहे हैं तो यू शुड आल्सो मेंशन दैट व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट व्हाट,
ओके, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड सिंबल यूज कीजिए, ठीक है। जैसे यू एन है तो यूनिट स्टेप फंक्शन यू एन फॉर डिस्क्रीट सीक्वेंस यू एन इज रिप्रेजेंटेड एज यू एन इज इक्वल टू एन फॉर 1 फॉर n greater than equal to 0 और 0 for n that is less than equal to 0 मीन्स जो आपका un है it has value 1 for all n greater than equal to 0 and un is equal to 0 for all n less than 0, ठीक है। मीन्स जब आपकी वैल्यू एन लेस देन 0 होगी तब यू एन की वैल्यू 0 रहेगी, व्हेन एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी तब आप जब तो यू एन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1, ठीक है। जैसे कि डायग्रामेटिकली समझा रखा है मैंने यहाँ पर कि देखो यहाँ पर आपका n इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। मीन्स आपका ये सीक्वेंस ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए सबकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1 1 है, ठीक है, बिकॉज यूएन की वैल्यू 1 है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट रेस्ट ऑफ के लिए अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये इसी तरह से आएगा -n, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू क्या रहेगी 0, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए। अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना है टाइम के साथ, टाइम में क्या रहेगा, एक सीधी लाइन आएगी इस तरह से, बिकॉज इट हैज ए कॉन्टेंट्स इन नेचर, जो इट हैज वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं कंडीशन को अगर टाइम डोमेन में लिखना चाहूँ सॉरी कॉन्टेंट्स टाइम के लिए तो यूटी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फॉर 0 फॉर यूटी इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0, ठीक है। और ये चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये वही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपका फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू एन इज इक्वल टू 0 0 0 0, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 है आपका 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या शुरू होगा आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह सीक्वेंस चलेगी अप टू प्लस इन्फिनिटी और इधर आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन। तो आपको इसकी ये कंडीशंस याद रखनी है बस। सिमिलरली लास्ट पीपीटी में भी आपको इसकी ये कंडीशन आपको लर्न करनी है कि किस तरह से क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि इसमें कोई आप ड्राइव तो कर नहीं सकते क्योंकि डेरिवेशन आप सॉल्व करने बैठे हैं, ठीक है। आपसे बेटर कि आप कंडीशन याद कीजिए कि डेल्टा यूनिट स्टेप फंक्शन की कंडीशन क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ए यूनिट रैम्प फंक्शन या फिर यूनिट रैम्प सिग्नल, ठीक है। एज नेम सजेस्ट रैम्प, एक रैम्प टाइप का अपने पास आपको इसमें क्या बनेगा, एक आपको डायग्राम बनता दिखेगा जैसे कि दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यू आर एन से। यू आर एन क्या कहता है कि यू आर एन इज इक्वल टू एन इफ एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और अदरवाइज अगर 0 है फॉर एन लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। मीन्स देखिए अब आप n की वैल्यू क्या, जब आप देखिए यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या पुट कीजिए 0 पुट कीजिए तो यू आर एन आपका कितना आएगा 0, ठीक है। अब आप n को पुट कीजिए 1 तो यू आर एन की वैल्यू कितनी आएगी 1, यू आर 2 पुट कीजिए अब तो आपकी सॉरी n आपको 2 पुट कीजिए तो आपका यू आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 4 पुट कीजिए आपको यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 4, सॉरी ठीक है 4, ठीक है। तो इस तरह से आप जब तो आपके पास एक रैंप बनता नजर आएगा आपको इस तरह से, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा आप डायग्राम से देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे है आपने n की वैल्यू 0 पुट की, यू एन की वैल्यू आपकी कितनी आई 0, आपने n की वैल्यू 1 पुट की, यू एन की वैल्यू कितनी आई 1, n की वैल्यू आपको 2 पुट की तो यू एन की यू आर एन की वैल्यू कितनी आई 2 पुट की। तो इस तरह से आप 1 1 1 वैल्यू पुट करते रहेंगे और आपके पास एक इस तरह से रैंप स्टेप स्ट्रक्चर मिलती रहेगी, ठीक है। बट जब आप n इज इक्वल टू माइनस मतलब 0 से कम पुट करेंगे तो उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो इसके लिए सब में जो रहेगी 0, ठीक है। ये तो आपका डिस्क्रीट सीक्वेंस के लिए था। अगर आपका सिग्नल अगर आपके पास कॉन्टेंट सिग्नल है तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन बनेंगे ut इज इक्वल टू t फॉर सॉरी फॉर ऑल नहीं ठीक है, यू आर टी इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन ये होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एवरी टाइम पे एवरी सैंपल पे आपको उसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन होगी, ये आपकी डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन होगी, ये आपकी फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी यूनिट रैंप सिग्नल की या यूनिट रैंप फंक्शन की,
ठीक है. Now next one is exponential signals. So how can I represent, or what is the conditions for the exponential signal is, that is Gn is a to power n, where n is greater than equal to 0. Means when you have put n is equal to 0, 1, 2, 3, we have Gn is equal to a to power 0, a to power 1, a to power 2, similarly a to power 3 and so on. As जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, you have a value of Gn, that is when you put n is equal to 1 0, you have a0, you have when you put n is equal to 1, you have a1. Okay, तो इस तरह से आप पूरी सीक्वेंस क्रिएट करेंगे. एंड व्हेन you have n is less than 0, similarly Gn is also 0. ठीक है. So this is all about, this is for the exponential signal. Here you have, when you have a between 0 to 1, the graphical representation of the exponential signal will be this. Okay, this is you can say, इसको हम किस तरह से क्या बोलेंगे, इसको डिसेंडिंग फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं हम एक्सपोनेंशियली डिसेंडिंग फंक्शन, बिकॉज आप जो आप देख रहे हैं जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. और ठीक है, और इसी तरह से जब आपका a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये एक्सपोनेंशियली असेंडिंग फंक्शन हो गया. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है आपका वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अलोंग टू दी एज दी एंड दी वैल्यू आपका इंक्रीज कर रही है. ठीक है. तो अब अगर मैं बोलूं आपसे पूछूं कि ये दो फिगर्स हैं, इन दोनों में से पीरियोडिक, ये दोनों पीरियोडिक हैं या फिर नॉन पीरियोडिक हैं, तो आप बताइए, आप सोचिए कि ये क्या रहेंगी. क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है, ये दोनों नॉन पीरियोडिक हैं, बताइए. द आंसर इज कि दोनों के दोनों सीक्वेंस जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दोनों के दोनों नॉन पीरियोडिक हैं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज पीरियोडिक विद पीरियड इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है. That is all about the exponential signal. Next one is a sinusoidal signal. इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं. तो any sinusoidal can be represented by x of n is equal to a sin omega n. Omega is nothing but angular frequency is equal to 2 pi f. Okay, or 2 pi by में t. T is nothing but a period of a signal, sinusoidal signal. ठीक है. If it is for discrete, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन भी आप देख रहे हैं डिस्क्रीट नेचर की है. ठीक है, कि आपके पास जो सैंपल, जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वेव का, वो सिर्फ पर्टिकुलर इंटरवल पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, इस तरह से. ठीक है. अगर आपके पास इसको मैं अगर आपके पास ये कॉन्टेंट्स हैं, तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट, दैट इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ठीक है. चलिए, जस्ट आप एन की जगह टी रिप्लेस करेंगे, तो आपका ये क्या आ गया, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल बन गया. ठीक है, जबकि ये पर आपके पास डिस्क्रीट नेचर है. ठीक है, ये आपका साइनसोइडल है. तो आप देखें कि जो साइनसोइडल वेव है, ठीक है, इट हैज एम्पलीट्यूड 0 एट n इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, इस तरह से ये दिस इज ऑल अबाउट द साइनसोइडल सिग्नल. ठीक है. तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सभी में से, वो ये शुरू के 3 है: यूनिट इंपल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट रन फंक्शन. इनमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा मतलब रहता है, मतलब पॉसिबिलिटी. ठीक है. तो नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर पल्स और सिग्नम पल्स. तो रेक्टेंगुलर फंक्शन की जो वो क्या है, जो कंडीशन है वो है क्या है, रेक्ट ऑफ टी इज इक्वल टू, ये फॉर कॉन्टिन्यूस के लिए है बिकॉज वी हैव यूजिंग हियर टी. तो if we have a t between minus 1 by 2 to plus 1 by 2, we have value 1, otherwise 0. ठीक है. तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किस तरह से, we have a t axis, sorry, we have a t axis here. Got it? So let us say it is 1 by 2, it is say plus 1 by 2. ठीक है. So here we have amplitude that is 1 1 1. ठीक है. एंड एवरीवेयर एल्स लाइक दिस, और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा आपका, 0 होगा. ठीक है. इसी तरह से सिग्नम के लिए क्या कंडीशन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एस जी एन टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. और इट हैज एम्पलीट्यूड दैट इज -1 फॉर टी लेस देन 0. ठीक है. तो हियर टी इज इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव हैंड साइड है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा 1, और हियर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका -1. ठीक है. तो हमने इसको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया.
इस तरह से, बिकॉज इट इज फॉर कॉन्टिन्यूस सिग्नल के लिए, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर डिस्क्रीट सिग्नल होता तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते बताइए मुझे सिग्नल को। तो एस जी एन एन इज इक्वल टू 1 4 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड -1 फॉर एन लेस देन 0, ठीक है। तो आपके पास ये डायग्राम कैसी बनती है फिर, ये डायग्राम डिस्क्रीट सिग्नल, सॉरी, ये डायग्राम कैसी बनती है डिस्क्रीट सिग्नल के लिए, ये कैसे बनेगी, कैसे बनेगी बताइए। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, जब आपकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल भी आएगा यार, यहाँ पर इक्वल भी आना चाहिए, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना, नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है सही है, ठीक है, कि जब आपका x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब का एम्पलीट्यूड कितना है 1 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप डिस्क्रीट है तो, ठीक है। और अगर माइनस लेस देन 0 के लिए इसका एम्पलीट्यूड कितना है -1, तो -1 तो ये क्या बन गया वेक्टर का, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा, दोबारा बताता हूँ कैसे, अगर डिस्क्रीट सिग्नल है तो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ठीक है, जब आपका 1 है, सिग्नम की एम्पलीट्यूड दैट इज 1 है व्हेन n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। और -1 के कब होगा, जब n आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी सिग्नम की, अगर आप उसको कोऑर्डिनेट्स करना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट कर दीजिए, देखिए वही बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, पल्स और यू कैन से फंक्शंस, ठीक है। So in next lecture we will study the different types of systems. This is also very important because every time you hear about when you do the signal processing you learn LTS system, LTS system. तो so आपको पता होना चाहिए कि what is generally LTS system, what will be its property, okay। तो next lecture में आपको हम पढ़ेंगे इतना, इसको देखिए। अगर आपको किसी चीज में भी डाउट है तो जस्ट मेल इट टू मी, मेरी मेल आईडी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आप अगर आपको कोई डाउट है तो जस्ट मेल इट टू मी। ठीक है, तो ये मेरी ईमेल आईडी है अभिषेक ठाकुर ABHISHEK THAKUR2407 @gmail.com। अगर किसी को डाउट है तो इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जहां तक इस पीपीटी से एक ही न्यूमेरिकल 2016 में आया था अबाउट दी व्हाट विल द पीरियड ऑफ ए सम, जो मैंने करा था अभी कि किसी भी अगर सीक्वेंस आगे उसका पीरियड कैसे निकालना है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। आगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएंगे, लाइक आए हैं, वो मैं आपको आगे सोल्व कराऊंगा, बट उसके लिए आपका उसके लिए हमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो आपको अब मैंने आपको यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में तो बता दिया, बट आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो हम उन क्वेश्चन को बाद में स्टडी करेंगे जब हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फिर आगे हम सिस्टम के बारे में देखेंगे, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, हैव ए गुड डे।